A very good evening to all of you. I, Ashish Mishra, Assistant Professor in the Department of Pharmacology from Apex Institute of Pharmacy, Samaspur Chunar, Mirzapur, welcoming you in this presentation. Let's start with the topic neuron. So, as you all know that the nervous system comprises two types of cell. हमारे जो नर्वस टिश्यूज़ हैं वो बेसिकली दो सेल से बने होते हैं. फर्स्ट है न्यूरॉन्स, सेकेंड है न्यूरोग्लाया. एज न्यूरॉन्स इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, है a very specialized structure. Basically, it provides most of the unique functions of the nervous system, such as sensing, thinking, remembering, controlling muscle activity, and regulating glandular secretions. But as a result of their specialization, they have lost the ability to undergo mitotic division, because neuron does not have centrosome, so it cannot undergo division. This is the structure of the neuron that basically comprise of the three cells, three parts. That is, first is a neuron, first is a cell body, second is a dendrite, third is a axon. These three parts holds the important functional activities of the neuron. So, introductory part of neuron. The neuron is the electrically excitable cell that processes and transmits information by electrical and chemical signaling. ये एक ऐसा सेल है हमारे नर्वस सिस्टम का जो कि फॉरेन स्टिमुलाई को एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जो कि फर्दर कम्युनिकेशन प्रोसेस को, मैसेज को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है और जो भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं ब्रेन के उसको करने में मदद करता है. न्यूरॉन्स आर द कोर कंपोनेंट्स ऑफ द nervous system, which includes the brain, spinal cord and peripheral ganglia. बेसिकली ह्यूमन ब्रेन में बात करेंगे तो बिलियंस टू मिलियंस न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे कम्युनिकेट टू अदर न्यूरॉन्स वाया डिफरेंट सिग्नलिंग प्रोसेसेस, वाया इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग और केमिकल सिग्नलिंग. According to the structural perspectives of the neuron, it basically contains three main parts, as I told in the starting lecture. First is a cell body that is also known as perikaryon. Second is a dendrite and third is a axon. But along with these structure, neuron also contain some supporting cell parts, that is a myelin sheath, neurolemma. The cell body is the central region, which is the most important part of the neuron, containing the nucleus of the cell. The cell body, as I told, सेल बॉडी क्या है, हमारे न्यूरॉन्स का इम्पॉर्टेंट सेंट्रल रीजन है जो कि न्यूक्लियस कंटेन करता है. इसके साथ साथ ये सेलुलर ऑर्गेनेल्स भी इंक्लूड करता है, जैसे लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस. Along with this,
it also contain some different parts termed Nissl bodies, as I told in the next slide. So it is the basically site of the major metabolic activity in the neuron. as स्ट्रक्चर में देख रहे हो आप लोग, in the detailed view of cell body, there is a different types of typical cellular organelles like Golgi apparatus, nucleus, nucleolus, membrane, microtubule, mitochondria, and these structures basically responsible for the survival of neuron. When we talk about the size of the neuronal cell, the neuronal cell body, that range widely from 0.005 millimeter to 0.1 millimeter in mammals. As there is a collection of cell bodies that gives the grayish appearance to the gray matter of the brain. Now the next, as I told, that the neuronal cell body also contain some peculiar angular granules that termed as Nissl granules or Nissl bodies. Basically हमारे न्यूरॉन में एक Nissl granules स्ट्रक्चर पाया जाता है, that is basically responsible for the प्रोटीन सिंथेसिस. ये हमारे जो क्या है, साइट है प्रोटीन सिंथेसिस का. एंड इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व in the synthesis of neurotransmitters such as acetylcholine. Now the next topic is, next part of the neuron is dendrite. As dendrite is the receiver of the neuron, basically it receives the impulse and carry these impulse towards the cell body, and further the messages are transferred to the axon and communicate to the other neuron through the different fibers, that is the afferent fiber. हमारे जो डेंड्राइट्स होते हैं, it is a tree like structure and ये रिसीवर की तरह वर्क करते हैं और दूसरे न्यूरॉन से मैसेज को लेके फर्दर उसको प्रोसीड करते हैं हमारे दूसरे न्यूरॉन्स में. इस प्रकार ये कम्युनिकेशन प्रोसेस को, कम्युनिकेशन गैप को कम करने में हेल्प करते हैं, एज वेल एज इंक्रीज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर न्यूरॉन्स. नेक्स्ट, in the next part, that is the most important part, that is axon. Axon is one of the two types of protoplasmic protrusions. Basically ये लॉन्ग थिन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को सेल बॉडी से अवे करने में दूर ले जाते हैं और फर्दर अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट शेप, लेंथ एंड फंक्शन ये डिफरेंट टाइप्स के एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं. द पॉइंट वेयर द एक्सॉन अराइजेज फ्रॉम ए सेल बॉडी इज टर्म्ड एज एक्सॉन हिलॉक. बेसिकली as I know, this is neurons and
this is the synaptic terminal region, and this part where the axon start is called as axon hillock. And the cytoplasm within the axon of a neuron is the exoplasm. Now the next term is axolemma. So the axolemma, it consists of two words, lemma and exo. Exo means axon and lemma means sheath. It is a cell membrane surrounding an axon that is basically responsible for maintaining the membrane potential of the neuron, and it is responsible for the ionic flow because it contains various ion channels. बेसिकली हमारे जो न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स पार्ट होता है, दे आर सराउंडेड बाय द वेरियस प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स. बेसिकली श्वान सेल्स होते हैं that insulates peripheral neurons and oligodendrocytes insulating those of the central nervous system. इसके अलावा इसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है जो कि एक्सॉन को प्रोटेक्ट करने में, इलेक्ट्रिकली स्टेबल करने में हेल्प करता है. इसके साथ साथ इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ एक्शन पोटेंशियल. बेसिकली क्या होता है, हमारा जो एक्सॉन है, जो माइलिन शीथ है, ये एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है. ठीक है. एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल इज अ नर्व इम्पल्स, इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट travels along the surface of the membrane of a neuron. Basically, it begins due to the movement of important ions such as sodium and potassium between the interstitial fluid and inside of a neuron through the specific ion channels in its plasma membrane. And myelin sheath helps to increase that nerve impulse, which further promote the important functions of the brain. In between the myelinated sheath, there is an interruption. As I told in the previous slide, न्यूरॉन्स में बीच में एक इंटरप्शंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनिवर. This is the gap in the sheath known as nodes of Renier, and that helps to increase the transmission speed in comparison with those that does not have any myelin sheath as a covering membrane. जो myelinated nerve fibers होते हैं उनके वजह से हमारे न्यूरॉन्स के बीच में एक गैप होता है, माइलिनेटेड शीट के बीच में गैप होता है जिसको हम नोड्स ऑफ रेनिवर बोलते हैं, और ये बेसिकली स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है, नर्व इम्पल्स की स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है जो कि 0.5 to 130 मीटर पर सेकेंड हो सकती है. टर्मिनली इन द टर्मिनल रीजन अगर हम बात करेंगे कि एक्सॉन के बाद बेसिकली क्या होते हैं, हमारे टर्मिनल रीजन होते हैं जहाँ से फर्दर मैसेज दूसरे न्यूरॉन तक पहुँचता है. तो ये हमारे क्या होते हैं, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक बल्ब. इट कंटेन्स द वेरियस सिनेप्टिक वेसिकल्स एंड ड्यू टू द वेरियस सिग्नलिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस लाइक इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल, एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स के बीच कम्युनिकेट हो पाता है.
और इनके जंक्शंस को हम बोलते हैं सिनैप्स। सिनैप्स इज़ द रीजन बिटवीन द टू कनेक्टिंग न्यूरॉन्स, that is also known as synaptic gap or synaptic cleft or neural junction. This is the structure of the axon. ये हमारा क्या है, ये माइलिन शीथ है, इनके बीच में गैप है जिसको हम नोड्स ऑफ रेनिवर बोलते हैं। और इस स्पीड की वजह से, इस गैप की वजह से, इस इंटरप्शंस की वजह से जो न्यूरॉन्स का जो ट्रैवल होता है वो तेज़ी से होने लगता है हमारे एक्सॉन में और फर्दर सिनेप्टिक बर्स्ट में पहुंचता है। सेकेंड स्ट्रक्चर बेसिकली कंप्लीट एक सिंपल स्ट्रक्चर बता रहा है जिसमें ये डेंड्राइट्स हमारे मैसेज को रिसीव करते हैं, सेल बॉडी के होते हुए हमारे एक्सॉन्स तक पहुँचते हैं और फर्दर वो टर्मिनल ब्रांच तक पहुँचते हैं जहाँ से फर्दर प्रोसेस आगे बढ़ती है। अगर अब बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ न्यूरॉन्स की, तो बेसिकली हमारा न्यूरॉन्स डिफरेंट टाइप से क्लासिफाइड है। कैसे? बेसिकली क्या होता है, अकॉर्डिंग टू देयर पोलैरिटी, अकॉर्डिंग टू देयर polar region, that is a unipolar, multipolar or bipolar, इसको हम स्ट्रक्चरली डिवाइड करते हैं 3 भागों में। फर्स्ट है यूनिपोलर, सेकंड है मल्टीपोलर, सेकंड है बाइपोलर, थर्ड है मल्टीपोलर। तो यूनिपोलर बेसिकली क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूरॉन इन विच ओनली वन प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस एक्सटेंड फ्रॉम द सेल बॉडी। मतलब दिस इज़ अ न्यूरोनल स्ट्रक्चर एंड वन प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन from the cell body is known as a unipolar. Second is a pseudo unipolar. It contains an axon that has a split into 2 branches. One branch runs to the periphery and others to the spinal cord. Third is a bipolar. Bi means 2. Basically in the bipolar neuron there is a neurons with the 2 poles. Axon arise from one pole and dendrites arise from the other pole. It is a specialized sensory neurons for the transmission of specialized senses. Hence, for the functioning of various sensory pathways like smell, sight, taste, hearing and vestibular functions, these are responsible. This is the basic structure of the unipolar, bipolar as well as multipolar. Now this is a multipolar. As name indicate, it has the neurons which have many poles. One of the poles give rise to axon and all other poles give rise to dendrite. And depending upon the length of axon, these are divided into 2 types, that is a Golgi type 1 and Golgi type 2. Golgi type 1 neurons have long axons and Golgi type 2 neurons, basically the difference between these 2 subtypes is the length. Golgi type 1 have long axons and Golgi type 2 have a short axons. Now, according to the functional classification of the nervous system, neurons, it has 2 neurons, that is the first afferent and efferent. Afferent का मतलब होता है जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को नर्वस सिस्टम तक ले जाए, वहीं अगर efferent की बात करेंगे तो जो वापस ले आए। afferent न्यूरॉन्स को हम सेंसरी न्यूरॉन्स भी बोलते हैं और efferent न्यूरॉन्स को हम मोटर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। Basically, afferent neurons it carry the information from the tissues and organs. Basically जो पेरिफेरल organs होते हैं उसको उससे मैसेज हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने में हेल्प करता है।
वहीं जो इफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, बेसिकली इन द इफरेंट न्यूरॉन्स इट कैरी द नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे जो इफेक्टर्स ऑर्गन है एज लाइक मसल्स और ग्लैंड्स, यहाँ तक मैसेज पहुँचाने में मदद करते हैं। बेस्ड ऑन देयर टारगेट्स द मोटर न्यूरॉन्स आर क्लासिफाइड सब डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज: सोमैटिक मोटर न्यूरॉन, visceral motor neuron, general motor neuron. Now this is the internal neuron that is also called as relay neuron or local circuit neuron that connects the afferent neurons and efferent neuron in the neuronal pathway. Internal neuron is the side which connects both the afferent as well as the efferent neurons. Now based on the neurotransmitter production, हमारे न्यूरॉन्स के बीच कम्युनिकेशंस केमिकल्स की वजह से भी होते हैं, जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिसकी एक्टिविटी होती है इनहिबिटरी एक्टिविटी एज वेल एज एक्साइटेटरी एक्टिविटी। तो डिफरेंट टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर को सेक्रीट करते हैं। कोलिनर्जिक न्यूरॉन, एस्टाइल कोलिन सेक्रीशन, गाबर्जिक न्यूरॉन, गामा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड सेक्रीशन, ग्लूटामेटर्जिक न्यूरॉन, ग्लूटामेट सेक्रीशन, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, it secretes the dopamine, and basically dopamine is a responsible chemical for the Parkinson disease, as well as serotonergic neuron. It is also important neurons that secrete serotonin that linked with the depression disorder. Now based on the unique shape and function, it has different cell. First is a Betch cell, second is a Purkinje cell, Renshaw cell, pyramidal cell neurons या pyramidal cells as well as basket cell. These cells present in the different parts of the brain and helps to regulate the neurotransmitter signaling process in the नर्वस सिस्टम। नाउ अब हम बात करेंगे नर्व फाइबर की। तो बेसिकली हमारे नर्व्स के अंदर कुछ नर्व फाइबर्स होते हैं दैट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ फेसिकल्स। इनके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। पेरीन्यूरियम, इसके अंदर होते हैं हमारे फ्लूइड जिसको हम एंडोन्यूरियल फ्लूइड बोलते हैं। इसके बीच हमारे क्या होते हैं, एपिन्यूरियम होते हैं, जो कि बेसिकली एक रैपिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे नर्व के बीच। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द न्यूरोनल कम्युनिकेशन, हाउ द न्यूरॉन्स कम्युनिकेट। सो बेसिकली देयर आर टू मेथड्स फॉर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रिकल, सेकेंड इज़ अ केमिकल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में हमारे नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रिकली एक्शन पोटेंशियल के द्वारा कम्युनिकेट होते हैं और केमिकल सिग्नल्स में ये न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा कम्युनिकेट होते हैं। दिस एक्शन पोटेंशियल डायग्राम आप देख रहे हो कि हमारे एक्शन पोटेंशियल, जैसे मैंने क्या बोला था कि बेसिकली आयंस के फ्लो में की वजह से होता है। इसमें बेसिकली हमारा सोडियम आयन, पोटेशियम आयन जिम्मेदार होता है। कोई भी बाहर से स्टिमुलस जब आएगा, न्यूरॉन्स उसको कन्वर्ट करेगा एक्शन पोटेंशियल में, मतलब नर्व इम्पल्स में, और वो हमारे दूसरे न्यूरॉन्स तक कम्युनिकेट करेंगे विद दिस मैकेनिज़्म। बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे सेल्स में सोडियम आयन का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो वो प्रोसेस क्या होती है, डीपोलराइजेशन की। 3 फेज़ में डिवाइड है। फर्स्ट होता है रेस्टिंग न्यूरॉन, जिसमें क्या होता है -70 मिलीवोल्ट में, मतलब इसमें रेस्ट में है, कोई आयंस का फ्लो नहीं हो रहा है। सेकेंड, एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होता है तो बाहर से स्टिमुलस क्या करेगा, सबसे पहले सोडियम आयन को ओपन करेगा, जिसकी वजह से सोडियम आयन जब सेल्स के अंदर आने लगेंगे तो वो फर्दर क्या होगा, फर्दर हमारे न्यूरॉन्स जब बढ़ेगा तो एक्शन पोटेंशियल की वजह से लेंथ हमारे इम्पल्स का बढ़ेगा। फर्दर
नेक्स्ट जैसे ही सोडियम आयन ज़्यादा होने लगेगा तो वो हमारे पोटेशियम चैनल को ओपन करेगा, और पोटेशियम चैनल जैसे न्यूरॉन्स में इंटर करेंगे तो हमारा ये जो लेंथ है वो गिरने लगेगा। तो इस प्रकार से हमारा न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ये देखिए प्रोसेस कैसे हो रहा है। ये हमारा -70 मिली वोल्ट है। जैसे ही कोई थ्रेशोल्ड आया, एक ऑप्टिमम लेवल पे पार करने के बाद सोडियम आयन ओपन हुआ। इसकी वजह से सोडियम आयन जैसे ही ओपन हुआ, क्या हुआ, पोटेशियम आयन क्लोज हो गया, क्योंकि पोटेशियम आयन की वजह से हाइपरपोलराइजेशन होता है। तो सोडियम आयन जैसे ही ओपन हुआ, ये इसका लेंथ बढ़ने लगा, ये पहुंचा +40 मिली वोल्ट तक। इसके बाद इस स्थिति में क्या होता है, हमारे क्लोराइड आयन और पोटेशियम आयन दोनों का रोल होता है, बिकॉज बोथ आयंस helps to maintain the membrane potential in the stable manner। क्लोराइड आयन और पोटेशियम आयन इसमें क्या होते हैं, सेल्स में दोनों की क्वांटिटी अंदर बाहर एक समान होती है, इस वजह से हमारे इसमें भी कोई गिरावट नहीं आती है। लेकिन जैसे जैसे क्लोराइड आयन का लेवल कम होता चला जाएगा, पोटेशियम आयन का लेवल ज़्यादा होता चला जाएगा, तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, फर्दर हमारे मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट टर्म है सल्टेटरी कंडक्शन। जैसे मैंने बताया था कि इट बेसिकली इज़ द डिमॉन्स्ट्रेट द स्पीड ऑफ द एक्शन पोटेंशियल along द माइलिनेटेड एक्सॉन। जो नोट्स ऑफ रेन्यूअल्स होते हैं, ये नोट्स ऑफ रेन्यूअल्स की वजह से हमारा क्या होगा, कंडक्शन स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये बेसिकली वेलोसिटी को इंक्रीज़ करते हैं एक्शन पोटेंशियल की, जो कि हमारे न्यूरॉन्स की स्पीड को दोगुना करने में हेल्प करते हैं। इट इंक्रीजिंग द कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल विदाउट नीडिंग टू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ एक्सॉन। एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन शीट बाय ओन इम्यून सिस्टम बेसिकली लीड्स टू द impairment in the signal processes, muscle control and brain function. Next is the chemical conduction. Now the chemical conduction is the process in which the communication process further proceed with the help of some chemicals, that is called neurotransmitter. Different types of the neurotransmitter released by the different regions of the brain. The site of the chemical interplay is known as a synapse. 3 types of synapses occurs between neurons, that is exodendritic synapse between axons to dendrite, axosomatic synapse between axon to cell body, and axonic synapse between axon to terminal endings. Basically, the action potential in the chemically there is a chemical synaptic vesicles, and when the action potential reaches it activate the zone where the chemicals is stored, and further it release into the postsynaptic terminal that is present in the next bulb, that is known as postsynaptic. And when this bind with their specific receptors, the biological responses show their help to promote. So the different types of neurotransmitter diffuse and binds with their different receptors on the postsynaptic membrane and initiate some sort of response on the postsynaptic cells. Now, thank you very much for your patience. Thank you.